So hello everyone and welcome to Eternal Biology, and today we are going to discuss the important topic of the upper limb, that is brachial plexus, and successively in the next lecture I will complete another important topic of the pectoral region, that is the breast. So let us start by discussing brachial plexus. This is a BP of anatomy, and in physiology you will read BP of physiology, that is blood pressure. So what we are discussing in today's section will be introduction to brachial plexus, its innervation. Please write down this content because it will help you to write point wise in the university examination. Introduction, innervation, branches, its branches, and its clinical. One more point we can add before discussing clinical: blood supply and then clinical. So brachial plexus must be discussed in these 5 points to get or to have a greater strength of this topic. Now, what to write in introduction? The introductory part of brachial plexus, we have to discuss what is the brachial plexus, its location. Okay, let me write. Introduction will include definition, its location, and its divisions. Okay, let me write more precisely. Definition, component or divisions, and location. Okay, these 3 things. And then innervation, why brachial plexus is important, which structures it innervates, what are the branches, its blood supply, and clinical. So definition. First of all, if you are unaware about the word plexus in Hindi we can say गुच्छा. अब आपको समझ में आ रहा होगा गुच्छा, फ्लावर का प्लेक्सस, बुके, और अंगूर का गुच्छा. ठीक है, अगर आप ब्रेकियल प्लेक्सस को समझेंगे, सो इट इज़ अ गुच्छा ऑफ नर्व्स. इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ नर्व्स. इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ नर्व्स for supplying sensory, motor, sympathetic and secretomotor fibers to the upper limb. So definition will include the brachial plexus is a mixture of nerves which supply sensory, motor, or precisely brachial plexus is a mixture of mixed spinal nerves which supply sensory, motor, sympathetic and secretomotor innervations to the upper limb. So it will include under the definition sections. Now what are its divisions? So brachial plexus arise from the cervical level C5, C6, C7, C8 and T1. Okay. So divisions will include, it will have roots. रूट्स यानी कोई भी चीज़ की रूट क्या होती है, जहाँ से वो ओरिजिन कर रहा हो. तो हर स्पाइनल नर्व की एक रूट होगी. रूट, फिर ट्रंक, फिर डिवीजन, एंड देन इट विल इंक्लूड द कॉर्ड्स. ठीक है, अब इनकी लोकेशन क्या है? आप हेड एंड नेक में पढ़ेंगे. इफ़ यू आर न्यू इन द फर्स्ट ईयर, आप हेड एंड नेक में पढ़ेंगे एंटीरियर एंड पोस्टीरियर ट्राइंगल्स ऑफ द नेक. ये जो हमारा नेक रीजन है और ये जो मसल दिख रही है स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड, इसके पोस्टीरियरली जो स्पेस है इसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर ट्राइंगल ऑफ द नेक. लोअर पार्ट ऑफ पोस्टीरियर ट्राइंगल ऑफ द नेक contains root, trunk and division of the brachial plexus which lie on scalenus medius. अगर हम यहाँ पर हमारी, ये रहा मेरा क्लेविकल, यहाँ से मैंने ओमोआयोट काट रखी है,
अगर आपने स्कैपुला और क्लेविकल पढ़ा हो तो आपको ये मसल पता होगी, ओमोहायोट। ठीक है, ये गई है मेरी स्टर्नोक्लिडोमास्टोइड। यहाँ पर फ्लोर बना रखा है किसने? स्केलेनस मीडियस ने। और इस स्केलेनस मीडियस के ऊपर लाई करती है हमारे रूट्स इन द अपर पार्ट, ट्रंक एंड डिविजन्स। फिर क्लेविकल के नीचे हमारा एक्जिला आ जाता है, एक्जिला। इस एक्जिला में हमें ब्रेकियल प्लेक्सस की कॉर्ड्स दिखाई देती हैं। सो दिस इज अबाउट द लोकेशन। लोकेशन समझ में आ गई आपको? डिविजन्स हमने बता दिए और डेफिनेशन हमने बता दी। इस तरह से हमारी ब्रेकियल प्लेक्सस का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ, इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट इज इनर्वेशन। इनर्वेशन में क्या क्या आएगा? सेंसरी इनर्वेशन, सेंसरी इनर्वेशन टू द स्किन एंड टू द डीप स्ट्रक्चर दैट इज जॉइंट्स। मोटर टू द मसल्स ऑफ द अपर लिम्ब, sympathetic to the blood vessels and secretomotor to the sweat glands। ये हो गया इनर्वेशन। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द ब्रांचेस। उसके लिए हमें ब्रेकियल प्लेक्सस का डायग्राम बनाना होगा, और बुक में जो डायग्राम दे रखा है वो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड, या फिर दैट डायग्राम इज नॉट अ वेरी गुड एक्सप्लेनेटरी इन इटसेल्फ। सो लेट अस मेक अ नीट एंड क्लीन डायग्राम। ब्रांचेस देखिए, C5 वर्टिब्रा, C6, C7, C8 एंड T1, ये वर्टिब्रा, या इनको कह लीजिए रूट्स। वही वर्टिब्रा से ही तो निकलते हैं सारे स्पाइनल नर्व। तो यहाँ से ये रूट्स निकली, इसको देखना कैसे मैं बना रहा हूँ। रूट्स निकली, दोनों रूट्स ज्वाइन हो गई, यहाँ से सिंगल रूट, यहाँ से फिर जो रूट्स थी वो मिल गई। रूट्स ने ज्वाइन होके C5 और C6 की जो रूट्स हैं उन्होंने ज्वाइन होके बनाई अपर ट्रंक, अपर ट्रंक। C7 ने बनाई मिडिल ट्रंक, और C8 और T1 ने बनाई लोअर ट्रंक। ट्रंक हो गया। अब डिविजन्स आएंगे। ट्रंक डिवाइड हो गई, पोस्टीरियर, एंटीरियरली, पोस्टीरियरली, एंटीरियरली, पोस्टीरियरली, पोस्टीरियरली, एंटीरियरली। समझ में आया? एंटीरियर, पोस्टीरियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, पोस्टीरियर, एंटीरियर। खुद देखे ना, ये आगे की तरफ जाएगी और ये अब पीछे चली गई। ठीक है, गेटिंग द पॉइंट? एंटीरियर डिवीजन, पोस्टीरियर, यानी रूट, ट्रंक, डिवीजन। अब हमारी बची कॉर्ड्स। तो हमें 3 कॉर्ड्स बनानी है, लेटरल कॉर्ड, पोस्टीरियर कॉर्ड और मीडियल कॉर्ड। अब कैसे बनेगी? सबसे पहले तो जो हमारी पोस्टीरियर कॉर्ड्स हैं उन तीनों को ज्वाइन कर दीजिए। ये पोस्टीरियर कॉर्ड है, तीनों पोस्टीरियर कॉर्ड ने ज्वाइन होके बना दी हमारा, तीनों पोस्टीरियर डिविजन्स ने ज्वाइन होके बना दी हमारी पोस्टीरियर कॉर्ड। इसको मैं थोड़ा सा थिक बना देता हूं सो दैट वी डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड। इस एंटीरियर डिवीजन ने अकेले बना दी मीडियल कॉर्ड, मीडियल कॉर्ड, और इन दोनों एंटीरियर डिविजन्स ने ज्वाइन होके क्या बना दिया हमारा? लेटरल कॉर्ड। So this is our lateral cord। अब आप सोच रहे होंगे मैंने ये ज्वाइन क्यों किया? एक और क्वेश्चन मैं आपके मन में प्रोड्यूस कर देता हूं। मैंने यहां पर इसको बाइफिड क्यों कर दिया? चलिए, इस तरह से हमें बनाना आ गया ब्रेकियल प्लेक्सस। अब बात आती है इसके नॉमेनक्लेचर की। नॉमेनक्लेचर से पहले मैं इसकी ब्रांचेस भी बना देता हूँ। ब्रांचेस मैं रेड से बनाता हूँ। सबसे पहले कुछ रूट से निकलेंगी, कुछ नर्व्स कहाँ से अराइज होंगे? रूट से। तो रूट से 3 नर्व्स अराइज होंगी।
पहली, दूसरी और तीसरी। क्लियर है? पहली, दूसरी, तीसरी। फिर कुछ ट्रंक से अराइज होंगी। एक बात ध्यान रखनी है कि केवल अपर ट्रंक ही ब्रांचेस देता है, तो यानी मिडिल और लोअर ट्रंक कोई ब्रांच नहीं देगा। तो अपर ट्रंक फिर अपने 2 ब्रांच देगा, एक और दूसरी ब्रांच। ठीक है। अब डिविजन्स ब्रांच नहीं देंगे। अब सीधे बात आएगी कॉर्ड पे। तो ये जो लेटरल कॉर्ड है, इसकी कौन कौन सी ब्रांचेज हैं? लेटरल पेक्टोरल, मस्कुलोक्यूटेनियस और लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व। यानी लेटरल पेक्टोरल, मस्कुलोक्यूटेनियस और ये जो तीसरी है लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व। ठीक है। अब बात करते हैं पोस्टीरियर कॉर्ड से। पोस्टीरियर कॉर्ड सी कौन कौन सी ब्रांचेस हैं पोस्टीरियर कॉर्ड की? बताइए। अपर सबस्कैपुलरिस, लोअर सबस्कैपुलरिस, थोरैकोडोर्सल और ये 2। ये कौन सी है? बताइए 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 बताइए, बता दो। एक्सिलरी एंड रेडियल। ठीक है। अब मीडियल कॉर्ड की बात आती है। मीडियल कॉर्ड की मीडियल पेक्टोरल, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म, अल्नर और मीडियन रूट ऑफ मीडियन नर्व। तो ये जो कंबाइन हुई है ये हमारी मीडियन नर्व है। ये जो 2 ब्रांचेस थी, ये एक्सिलरी और रेडियल, ये हमारा लेटरल कॉर्ड, पोस्टीरियर कॉर्ड, मीडियल कॉर्ड, एंटीरियर डिवीजन, पोस्टीरियर डिवीजन, एंटीरियर पोस्टीरियर एंटीरियर, रूट्स, ट्रंक। ठीक है। इस डायग्राम को बनाते समय कुछ चीजें और मैं आपको बता देता हूं। एक वर्ड आता है अर्ब्स पॉइंट। अर्ब्स पॉइंट, ये कौन सा पॉइंट है? दिस इज अर्ब्स पॉइंट। 1 2 3 4 5 6 नर्व्स मीट हियर, अर्ब्स पॉइंट। ठीक है, ये याद रखना है। दूसरी चीज क्या याद रखनी है? जो हमारा एंटीरियर डिवीजन होता है इट सप्लाइज फ्लेक्सर मसल्स, और जो पोस्टीरियर डिवीजन होता है दैट सप्लाइज एक्सटेंसर मसल्स। तो यानी एंटीरियर डिवीजन सप्लाइज फ्लेक्सर ओरिजिन, पोस्टीरियर एक्सटेंसर ओरिजिन। ठीक है। फ्लेक्सर्स ऑफ आर्म, फ्लेक्सर्स ऑफ फोर आर्म, एक्सटेंसर्स ऑफ आर्म, एक्सटेंसर्स ऑफ फोर आर्म। ठीक है। फ्लेक्सर्स ऑफ हैंड, एक्सटेंसर्स ऑफ द हैंड। इज इट क्लियर? चलिए, ये डायग्राम अच्छे से बना लीजिए ना, क्योंकि इसके बाद इससे इंपॉर्टेंट काफ़ी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, ये बात हो गई। अब मैं इसे रब कर रहा हूँ। अब बात आ जाती है इन सारी ब्रांचेस की रूट वैल्यूज याद करने की। अब रूट वैल्यू कैसे याद करें, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ।